Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. So children, today we are going to start chapter 2, class 3, subject social studies. So children, what is the name of our chapter? Good. The earth, our home. What is the name of our chapter? The earth, our home. Clear? So before starting the chapter, first you take out your book. See children, social study class 3, page number 14. Open your book fast, page number 14. Now before starting the chapter, let us do this exercise. Look at the picture and answer the questions that follow. See children, this is the solar system. This is the sun and the 8 planets. How many planets in our solar system? Good. How many planets? 8 planets. That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So these are all the 8 planets. See children. So the question is, which planet is closest to the sun? See, suppose this is our sun. Okay. So, which planet is closest to the sun? Which planet? Our first planet is of solar system is Mercury. Mercury is the closest to the sun. ये सबसे sun की क्या है? Closest है, सबसे पास में. And it is the smallest planet in solar system. So children, first the answer is Mercury. Now children, the second question. Which planet lies between Earth and Jupiter? See children, after Mercury, then Venus, third is our Earth, and fourth is Mars, and the fifth one is the biggest planet, Jupiter. So, what is our question? Which planet lies between Earth and Jupiter? Earth और Jupiter के बीच में कौन सा planet है? So, what its name? That is Mars. Now, our second answer is Mars. Is the red planet. Now, third question. Which is the furthest planet from the sun? Okay children. First is Mercury, second Venus, third Earth, fourth Mars, fifth Jupiter, and sixth one is the Saturn. It has an icy rings. This planet is Saturn. Now the seventh one is the Uranus, and the eighth one is the Neptune. Eighth one is the Neptune. So see children, which planet is farthest to the sun? कौन सा planet जो sun है उससे सबसे दूर है? दूर कौन सा है? This Neptune. Neptune is the farthest from the sun. So our third answer is Neptune. Clear children? First is Mercury. Mercury is the smallest planet. Okay, and it is very closest to the sun. Second is the Venus. It is the brightest planet. Third is our Earth that we live. So it is the blue planet. Fourth is Mars. It is the red planet. Fifth is the biggest planet in solar system. That is Jupiter. Sixth is Saturn. It has an icy rings. Seventh Uranus, and eighth is Neptune. Clear children? Good. So now we are going to start our chapter. Our first topic is, what is our first topic? Earth. Because our chapter name is The Earth, Our Home. So children, जिस planets में हम रह रहे हैं, हम किस planet में रह रहे हैं? Good. अर्थ में. तो हमारी अर्थ है
जिंदा है ना। तो ऐसी क्या कंडीशंस है जिससे इस प्लेनेट पे जो लाइफ है वो सर्वाइवल हो सकती है। सी दिस इज अवर अर्थ। चिल्ड्रन, सो इसमें क्या है बेटा, क्या कंडीशंस है जो इस प्लेनेट में लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। सन, दिस इज द सन, ओके। द सन गिव्स, ये सन है, ये हमें क्या दे रहा है बेटा, हीट दे रहा है ना। और हमारी जो अर्थ है उसका ये कितना फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 पार्ट्स है, दैट इज 4 पार्ट। अब हमारी अर्थ में कितना परसेंट जो पार्ट है वो वाटर एरिया है, हमारी अर्थ का कितने परसेंट वाटर एरिया है, 3/4 पार्ट किससे कवर है, वाटर से। किससे कवर है, वाटर से। सो चिल्ड्रन, अवर अर्थ 3/4 एरिया इज कवर्ड बाय वाटर, मीन्स जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट वाटर है, 71%। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है कितना बच गया है, ओनली 1 पार्ट। रिमेनिंग 1/4 पार्ट है, वो पार्ट क्या है, लैंड, जमीनी एरिया, जिसका परसेंटेज कितना है, 29%। सो हमारी अर्थ है वो किन चीजों से मिलकर बनी है, बेसिकली वाटर से और लैंड से। इसमें क्या है, वाटर है और लैंड है, बट कितना परसेंट वाटर है, तो 3/4 एरिया है वो किससे कवर्ड है, वाटर से, और 1/4 एरिया है वो किससे कवर्ड है, लैंड से। ओके। सो चिल्ड्रन, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो ग्रो होते हैं, जो बढ़ते हैं, है ना, वो जिसमें क्या, जो सांस लेते हैं, ये सारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये कैसे जिंदा है अदर प्लैनेट्स पे, तो ये जिंदा रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्या कंडीशन है ये इसमें, हमारी अर्थ में ऐसी क्या चीज है जिससे कि लाइफ पॉसिबल है अर्थ में। गुड, हमारी अर्थ में सबसे पहले क्या है, वाटर है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। पानी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े होते हैं किसकी हेल्प से, वाटर। वो अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे। अगर वो सूख जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जिसको कि कौन लेते हैं, वी ह्यूमन बीइंग, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो वो कहाँ से आएगी जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर है। देन उसके बाद क्या आती है, सन की हीट। हीट से ये जो प्लेनेट है वो क्या रहता है, गर्म रहता है ना। हीट और सनलाइट, है ना, सनलाइट से क्या मिलती है हमें, सनलाइट से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, गर्मी मिलती है। तो इस प्लेनेट और जो दूसरे प्लेनेट रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत कोल्ड रहते हैं, बहुत ठंडे रहते हैं, है ना। कोई प्लेनेट बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और कोई प्लेनेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। बट हमारी जो अर्थ है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसका जो क्लाइमेट है वो क्या है, मॉडरेट है। क्या है, मॉडरेट, मीन्स ना तो ज़्यादा ठंडा ना तो ज़्यादा गर्म, ठीक है। सो यहाँ पर क्या मिल रही है, इसको हीट मिल रही है। और ये जो लेयर एक होता है, सी हमारी अर्थ, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर। ये क्या है, ये लेयर है किसकी, एयर की, जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फियर। Our earth is surrounded by the layer of air that is called the atmosphere. Atmosphere इसी के कारण जो है life is possible on earth, our planet. Atmosphere में कौन सी गैस है जो हमें लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है इसमें, जिससे कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सबकी लाइफ पॉसिबल है इस प्लेनेट पे रहने के लिए। क्लियर। सो चिल्ड्रन,
children, what is the shape of our earth? Our next topic is shape of our earth. Shape of the earth. So children, हमारी अर्थ का शेप कैसा है? क्या वो स्क्वायर शेप है, क्या रेक्टेंगल शेप है, क्या ट्रायंगल शेप है? कैसा शेप है हमारी अर्थ का? गुड, इट इज राउंड लाइक अ बॉल। ये कैसा दिख रहा है? राउंड। हम आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द शेप ऑफ आवर अर्थ। The shape of the earth. Okay, so it is like a ball. ये किसकी जैसा है? Ball, like an orange. Okay, see children, for a long time people thought that earth was flat. बहुत समय पहले जो लोग हैं, people थे, वो क्या सोचते थे? अर्थ क्या है? ऊपर से फ्लैट है और उसकी क्या है? एजेस है, कॉर्नर से। ओके, दिस इज द फ्लैट। फ्लैट कैसा होता है? ऐसा होता है, और उसकी क्या है? एजेस है, कॉर्नर से। ओके, बट 500 ईयर्स एगो, 500 साल पहले, क्या नाम था? फर्डिनांड मजेलिन। कौन थे? फर्डिनांड मजेलिन। ओके, अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर। इन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो अर्थ है, हमारी अर्थ है, वो क्या है? इट इज राउंड। ये क्या है? ये गोल है। ओके, सो फर्डिनांड मजेलिन, इन्होंने 500 ईयर्स पहले स्पेन से, कहाँ से? स्पेन से अपनी सी जर्नी स्टार्ट करी थी, समुद्री यात्रा, सी जर्नी। ही स्टार्टेड अ सी जर्नी। कहाँ से स्टार्ट करी थी? इन विच प्लेस? Spain. And after 3 years they reached the same place. Means 3 साल के बाद, after 3 years, जब उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया तो वो वापस कहाँ पर आ गए? सेम उसी जगह जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। ओके, सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी। कहाँ से स्टार्ट करी थी जर्नी? स्पेन से। और उन्होंने सी जर्नी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे सेलर थे, तो उन्होंने अपनी जो सी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी? स्पेन से। और उनको इस पूरा, हमारी जो अर्थ का पूरा राउंड एक ही डायरेक्शन में उन्होंने गए। और कब पहुंचे वो? आफ्टर 3 ईयर्स के बाद वो उसी जगह पहुंच गए जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि आवर अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। राउंड, आवर अर्थ इज स्फेरिकल शेप। हमारी जो अर्थ का शेप है कैसा है? गोलाकार शेप है। क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, सी, बट our earth is slightly हल्की सी flat at the top and slightly flat at the bottom. Clear? Now our next topic is globe. Our next topic is globe. What do you mean by globe? Globe आपने बनाया होगा बेटा। See, this is globe. Okay, this is look like. This is globe. Globe is the model of the our earth. ये क्या है? हमारी अर्थ का एक मॉडल है। What is globe? Globe is the model of earth. Okay, because our earth is very big. हमारी जो अर्थ है बहुत बड़ी है, तो हम उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्लोब के थ्रू। किसके थ्रू? ग्लोब के थ्रू। बट वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम। हम ग्लोब को अगर देखेंगे तो हम पूरी अर्थ को नहीं देख सकते, बिकॉज वी कैन सी द ओनली फ्रंट पार्ट ऑफ डेट। जो अदर पार्ट है वो इसके क्या है? बैक साइड में है।
So we can see only, it is not possible to see the entire earth at a time. हम पूरी अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते, हम ओनली इसका पहले क्या देखेंगे, फ्रंट पार्ट और फिर इसका बैक पार्ट. क्लियर? सो दिस इज द ग्लोब. व्हाट इज दिस? इट इज द मॉडल ऑफ आवर अर्थ. व्हाई इट इज यूज? इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज इसलिए किया जाता है बिकॉज टू फाइंड द करेक्ट साइज, ओके, करेक्ट लोकेशन ऑफ different continents, different oceans, okay children, so different places. इसका यूज इसलिए किया जाता है जिससे हमें ये पता चल सके कि जो ओशियंस है और जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी कहाँ करेक्ट साइज कौन सी है, उनका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे कौन सा ओशियन आता है, कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट्स आता है. तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है हमें किसके थ्रू मिलती है? ग्लोब के थ्रू. ओके, ये तो हो गया इसका एडवांटेजेस कि ये बहुत हेल्पफुल है. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है ग्लोब का? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब? डिसएडवांटेजेस मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी. ये बहुत क्या है? डिफिकल्ट टू कैरी, क्योंकि हम हर जगह इसको उठा के नहीं ले जा सकते. इट इज डिफिकल्ट टू कैरी. ओके, ये क्या है? डिफिकल्ट टू कैरी एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेस ऑन अ स्मॉल ग्लोब. ये पॉसिबल नहीं है कि छोटी छोटी सी प्लेस हम ग्लोब पर फाइंड कर सकते हैं. जो छोटे स्मॉल एरियाज होते हैं, स्मॉल कंट्रीज होते हैं, वो किस में दिखाई नहीं देती है? ग्लोब में. ओके, इसलिए हमें उसको किसका यूज करना पड़ता है? मैप का. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सी स्मॉल प्लेसेस थ्रू ग्लोब. क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैप. So children, what is map? Good. Map. Map क्या होता है? Map is the drawing of our earth. क्या होता है? Drawing. Map is the drawing of the earth or a part. और इसका कोई भी हिस्से का पार्ट भी हो सकता है. Part of it. Okay. Map is a drawing of the earth or a part of it. मीन्स जैसा कि हम ग्लोब में देखा था कि हमें जो छोटी प्लेस है, जो छोटे एरियाज है, वो किस में फाइंड नहीं हो सकते हैं? ग्लोब में नहीं हो सकते. बट हम मैप बनाकर इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये जो प्लेस है कहाँ पर है. क्लियर? जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप होते हैं. जैसे आप जैसे स्कूल में है तो स्कूल का मैप अलग होगा, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसका मैप बन सकता है, आप जिस सिटी में रहते हैं तो उसका मैप भी होगा, है ना. आप जिस कंट्री में रहते हैं तो जैसे इंडिया है, इंडिया का मैप अलग है, वर्ल्ड का मैप है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप बनाकर हम ये जान सकते हैं उनकी इंफॉर्मेशन. क्लियर? एंड व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मैप? इसका क्या एडवांटेजेस होगा कि इट इज इजी टू कैरी. ये बहुत क्या है? इजी है. ऐसे फोल्ड करो और अपना बैग में रख लो तो भी हम ला सकते हैं. ग्लोब को नहीं ला सकते क्योंकि वो तो मॉडल है, उसको तो हाथ में लाना पड़ेगा, है ना. सो इट इज इजी टू कैरी. चिल्ड्रन, दिस इज अ वॉल मैप. सी चिल्ड्रन, सम मैप्स आर हैंगिंग ऑन वॉल. कुछ मैप्स क्या हो जाते हैं? ऐसे जो वॉल पर हैंग हो जाते हैं. तो ऐसे मैप को क्या बोलेंगे? वॉल मैप. सी दिस. ओके, इस मैप को क्या बोलेंगे? वॉल मैप. एंड इट इज इजी टू कैरी. हम इसको जस्ट फोल्ड करके और इसको अपने साथ लेके आ सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? व्हाट इज वॉल मैप? सम मैप्स दैट आर हैंग ऑन वॉल इज कॉल्ड द वॉल मैप. एंड चिल्ड्रन, मैप कैन बी बिग और स्मॉल. मीन्स अगर आपको कॉपी में पेस्ट करना है इंडिया का फिजिकल में तो छोटा सा मैप आएगा, और
सी द वॉल मैप कितना बड़ा था, सो इट कैन बी बिग और स्मॉल। एंड द बुक ऑफ मैप, जो बुक होती है मैप की, उसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड एटलस। एटलस इज कॉल्ड द बुक ऑफ मैप। उसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज एरिया सबके मैप होते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज एटलस? गुड, इट इज द बुक ऑफ मैप। क्लियर? सो चिल्ड्रन, our next topic is directions on a map. What is our next topic? Directions on map. See children, page number 16. Sailors use this compass to find the directions when they are sailing. जो sailors हैं वो क्या यूज करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट जो सेलर यूज करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज बाय द सेलर ड्यूरिंग सी जर्नी इज कॉल्ड द कंपास। इसको क्या बोलते हैं? कंपास। ओके, ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन मीन्स व्हाट? यू नो दैट देयर आर 4 डायरेक्शन। हाउ मेनी डायरेक्शंस? 4 डायरेक्शन। That is at the top north, at the bottom south, at the right, yes, right east, and the left west. So see, these are the 4 main direction: north, south, east, and west. Okay, these are the 4 main direction. So the sailor use this instrument compass to know the directions. कंपास जो कि कैसा दिख रहा है? जो कि एक वॉच, एक घड़ी की तरह दिख रहा है, और इसके क्या है? नीडल है। नीडल मीन्स सी दिस ब्लैक नीडल, ये किसके पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ को। तो ये जहां पर ये पॉइंट करेगा नीडल, दिस इज नॉर्थ, तो समझ जाना है कि यहाँ पर क्या होगा? ईस्ट होगा, इधर क्या होगा? वेस्ट होगा, इधर क्या होगा? साउथ होगा। ओके, सिर्फ ये नीडल किसको पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ और साउथ। ओके, तो इससे अंडरस्टैंड करते हैं सेलर्स की दिस पार्ट है, दिस एरिया है, ये क्या है? नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। सी चिल्ड्रन, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। देयर आर सम इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होते हैं, जैसे ये सीरीज, जो एरिया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, जो प्लेसेस, उसको क्या बोलेंगे? एन ई मीन्स नॉर्थ ईस्ट। इधर एस ई मीन्स साउथ ईस्ट। द पार्ट दैट इज बिटवीन वेस्ट एंड साउथ, दैट इज कॉल्ड द एस डब्ल्यू, साउथ वेस्ट, एंड दिस इज एन डब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट। सो दीज आर द इंटरमीडिएट direction, and these are the 4 main direction: up at the top, north, bottom, south, east, and west. Clear children? And what is the instrument used by a sailor? Good. Instrument, what is the name? Good, compass. Clear? So children, our next topic is oceans and continents. Oceans and continents. So see children, page number 15. Page number 15. So this area, see children, this blue part, there are some ocean: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean. So very large water body. Very large water bodies are called, very large water bodies are called oceans. इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? महासागर। ओके, समुद्र तो कैसा रहता है? छोटा, बट समुद्र से भी 100 टाइम्स बड़ा क्या रहता है? ओशियन। वेरी लार्ज वाटर बॉडीज, है ना, क्योंकि हमारी जो अर्थ पे कितना % वाटर है?
1%। किस लिए? क्योंकि ये सारे ओशियन से हमारे जो इस अर्थ पर, ये जो ब्लू पार्ट है वो क्या है? ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन? पैसिफिक ओशियन। ओके चिल्ड्रन, सी ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है थर्ड में, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर है। ये हमारी जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सी दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड एट द बॉटम पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर। सो सी चिल्ड्रन, इसमें लिखा है ना पैसिफिक ओशियन 2 टाइम, मीन्स ये पैसिफिक ओशियन ऊपर लिखा है, मीन्स ये क्या है? नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, और ये पैसिफिक ओशियन नीचे लिखा है, दिस इज द साउदर्न पैसिफिक ओशियन। क्लियर? Which is the largest ocean? Good, Pacific Ocean. So how many oceans are there? There are 5 oceans. Okay, see children, this is the ocean. And what are continents? Continents क्या होते हैं? Very. What are continents? Large areas of land are called large area of land are called continents. जो लार्ज एरियाज हैं लैंड के, जमीन के बहुत बड़े बड़े लार्ज एरियाज, जैसे दिख रहा है ये येलो पार्ट, पर्पल, पिंक, सो दीज आर ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स. व्हाट आर देयर नेम? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. सो दीज आर द 7 continents. How many continents in a 7 continents? Clear? And Asia is the largest continent. सबसे बड़ा continent कौन सा है? एशिया. और अपना इंडिया किस में आता है? एशिया में. Okay children? So the large area of land are called continents. The large area of land are called the continents. How many continents are there? 7 continents. Clear? So children, our next topic is horizon. Horizon means what? If we stand at the top or a high building, जब हम किसी बहुत ऊंची जगह या फिर बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होते हैं, we can see, तो हम देखते हैं the sky and the land or the sea. जैसे कि यहाँ जो sea है और जो जमीन है और स्काई है, तो वो मिलते हुए दिखाई देते हैं, है ना. सी दिस एरिया, ऐसा लग रहा है कि ये जो है सी है वो किस में चली गई है? स्काई में एकदम मिल गई है दोनों एक दूसरे से, है ना. सो दिस एरिया इज कॉल्ड द प्लेस वेयर दे अपीयर टू मीट इज कॉल्ड होराइजन. व्हाट इज कॉल्ड? होराइजन. Okay, and if we move towards the horizon, the sky and the land appear to move further away. और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो स्काई है और ये जो सी है, समुद्र है, वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं. क्लियर? सो एंड व्हाट इज द लास्ट? कोस्ट. व्हाट इज कोस्ट? कोस्ट क्या होती है? आप कोस्टल एरियाज जानते होंगे, जैसे जो सी है उसके आसपास के एरियाज को क्या कहते हैं? कोस्टल एरियाज. वहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या होता है? फिशिंग होता है, क्योंकि वो किसके पास में रहते हैं? समुद्र की आसपास रहते हैं, है ना. तो कोस्ट क्या होता है? कोस्ट मीन्स द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट. जहाँ पर ये जो जमीन और ये जो सी है जहाँ मिलते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? कोस्ट कहते हैं. द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द coast. Clear children? So now children, what we learn in this chapter? First, our earth is made up of water, air, okay, and second, what is the shape of our earth? Third is globe, and the fourth one is map. Fifth one is directions and oceans, continents. ओके, तो चिल्ड्रन आपको ये जो वीडियो है अगेन देखना है और अच्छे से समझना है. क्लियर चिल्ड्रन? ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.